ملائک کی صدا نام علی ہے، اور لب احمد کی ندا نام علی ہے۔ دوستان محترم، جیسے ہی علی نبی علیہ السلام کی گود میں آئے تو آنکھیں کھول دی۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا، میں ایک دو چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی، حضور نے پوچھا اماں نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی بیٹا میں اس معاملے میں تم سے سبقت کیسے لے جا سکتی ہوں، بھائی تمہارا ہے۔ گویا اما فاطمہ بنت اسد نے عرض کی ہوگی محمد آیا تیرے لیے ہے، نام کیسا؟ بیٹا میرا ہے، آیا تیرے لیے ہے، نام میں کیسے رکھوں؟ تو قبلہ حضور نے مسکرا کے فرمایا ھذا علی یہ علی ہے۔ اچھا میں عرض کروں یہاں پر کہ علی کا نام، علی کا معنی کیا ہے؟ بلانا۔ اچھا ڈکشنری جتنی بھی دیکھ لیں آپ، علی اس معراج کا نام ہے جہاں پر عروج کی انتہا ہوتی ہے۔ علی اس معراج کا نام ہے جہاں پر عروج کا اختتام ہوتا ہے۔ اچھا یہ نام کس نے رکھا؟ حضور نے رکھا، اور حضور علیہ السلام ہمارے نبی کے قدم اٹھانے میں بھی حکم الہی ہوتا تھا۔ گویا علی کا نام صرف مصطفیٰ نے نہیں رکھا، مولا علی کا نام علی رکھا گیا۔ اچھا یہاں پر ایک اور عرض کرتا چلوں، بڑی خوبصورت عرض ہے، آپ اس سے اتفاق بھی کریں گے۔ یہ جو نسب نامے لکھتے ہیں ان کے علم کے مطابق یہ ہے کہ دنیا میں سوائے انبیاء کے جس کا بھی نام رکھا جاتا ہے فرضی رکھا جاتا ہے۔ قبلہ جس کا نام رکھا جاتا ہے فرضی رکھا جاتا ہے، اس کا نام حقیقی نہیں ہوتا۔ کوئی شخص بھی انبیاء کے سوا اپنے نام کا عاقص نہیں ہوتا، اپنے نام کا مظہر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انبیاء کے سوا کوئی بھی اپنے نام کا مظہر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اب نام ہے شریف، لیکن گلی میں سب سے بڑا بدماش، ایسے ہوتا ہے۔ نام ہے نور، تے نور توڑا پٹ کے، یہ سنا ہوا ہے۔ نام ہے بہت سارے ایسے ہیں نا نام، کوئی بھی اپنے نام کا، اب نام ہے اشرف، کام زلیلوں والے، اشرف کا معنی اعلیٰ عرفہ، لیکن کام کیا ہے زلیلوں والے۔ تو کوئی بھی اپنے نام کا مظہر نہیں ہوتا، لیکن قربان جاؤں نام ہے علی، رکھا ہے مصطفیٰ نے، اور حکم ہے خدا کا۔ اب ہو نہیں سکتا کہ کائنات میں اس سے زیادہ کوئی اور علی ہو۔ زبان مصطفیٰ کی بتاؤ، یا تو یہاں پر شک کرو معاذ اللہ حکم خدا میں یا حکم مصطفیٰ میں، کہ ان کے حکم میں معاذ اللہ نقص ہے۔ اگر حکم خدا میں اور حکم مصطفیٰ میں نقص نہیں تو اللہ کے بعد اور مصطفیٰ کے بعد علی سے بلند کوئی نہیں۔ ایک روایت مختلف طریقے سے وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں، بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس زمانے میں اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ سائنس اپنے عروج پر ہے۔ یہ پیمانہ اور یہ لیبارٹری بہت بڑی لیبارٹری جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بادشاہ علی علیہ السلام کی ذات اقدس کو حضور نے، حضرت ابو طالب نے اپنی گود میں جب اٹھایا نا تو نکلے بیت اللہ سے۔ اب تاریخ عرب پڑھیں، تاریخ مدینہ میں بھی ہے، تاریخ عرب پڑھ کے دیکھیں۔ روضۃ الشہداء میں کسی اور طریقے سے یہ روایت ہے، تاریخ عرب میں یہ روایت کسی اور طریقے سے ہے کہ ابو طالب علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر جب گھر جانے لگے نا تو جو مجاور تھا مکہ کا، بیت اللہ کا مجاور تھا، وہ آگے آیا، وہ آ کے کہنے لگا کہ اے ابو تراب،
कानून अरब भूल गए हो? क्या तुम्हें कानून अरब का नहीं पता? अब कानून अरब क्या था? कानून अरब ये था कि कोहे सफा पर, सफा मरवा की जो पहाड़ी है ना, जो मदीना शरीफ मक्का शरीफ में गए हैं जानते हैं, सफा मरवा वहां पर है। सफा, कोहे सफा के ऊपर एक गार थी। उस गार में अरब के जाहलाना दौर में एक बहुत बड़ा अजहा था। जब भी किसी घर में बच्चा पैदा होता तो अरब वाले उस बच्चे को टेस्ट करने के लिए कि हलाली है या हराम, टेस्ट करने के लिए जायज है या नाजायज है, आप उठाते और उठा के कोहे सफा की गार के सामने रख देते। अजहा बाहर आता, अगर तो बच्चा हलाली होता तो अजहा देखता, सूंघता और वापस चला जाता, उससे कुछ न कहता। ये अब अबू तालिब से कहा मजावरे मक्का ने कि ए अबू तालिब, क्या कानून अरब भूल गए हो? अरब का कानून भूल गए हो? अबू तालिब ने क्या, कौन सा कानून? कहा ये कानून के इस बच्चे को टेस्ट करना है। अबू तालिब पूरे मुतमईन होकर, ये है बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो टेस्ट होने से पहले चेहरे से अयाम हो जाते हैं, लेकिन अबू तालिब पूरे मुतमईन होकर कोहे सफा की तरफ चल पड़े। अच्छा, माँ भी साथ है भाई, ये कानून फितरत है, कानून अरब नहीं, कानून फितरत है। माँ को इंजेक्शन लगे ना, इंजेक्शन, तो माँ का दिल खींचता है, लेकिन फातिमा बिन्ते असद, तेरा बेटा बेटा सोना अली कमरे बनी हाशम अबू तालिब ਨੂੰ फड़ाता है, पूछते सही किधर लेके चलना है? वो सांप है, अजहा है, लेकिन फातिमा बिन्ते असद ने साबित कर दिया कि हम बनु हाशम हैं। जमाना इस्लाम का हो या कबले इस्लाम, हम बनु हाशिम हैं। और सुनो जमाने वालों, मैं मुतमईन इसलिए हूं कि अबू तालिब की ज़ौजा हूं, अबू तालिब की ज़ौजा हूं, इसलिए परवाह नहीं है, मुतमईन हूं, खुश हूं। अबू तालिब ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को उठाया और कोहे सफा पर पहाड़ी के ऊपर रखा। अजहा बाहर आया, अहले अरब तशरीफ फरमा है, देख रहे हैं मौला जनाब अबू तालिब तशरीफ फरमा है, फातिमा बिन्त असद तशरीफ फरमा है, अबू जहल है, अबू लहब है, और भी बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं कि आज देखते हैं कि अबू तालिब के बच्चे के साथ क्या होता है। बनु अमिया के लोग बड़े खुश थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जानते नहीं थे कि ये अली इब्ने अबी तालिब अबू तालिब। दोस्तों मोहतरम, हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ताला साथ खड़ी सरदार मक्के के पास खड़े हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम कोहे सफा पर आए, कोहे सफा पर रखा गया, अबू तालिब ने रखा। जैसे ही अजहा बाहर आया, अहले अरब देख रहे हैं कि क्या होता है। अजहा बाहर आया, पहले तो पीछे होकर खड़ा हो गया। अजहे को भी पता था कि अली आगे अली इब्ने अबी तालिब है। दोस्तों मोहतरम रिवायत है, लिखने वाले ने लिखा है कि अजहे ने फिर गलती की, अजहे को कोई और भूल थी, अजहे ने गलती की। अजहा जैसे ही आगे आया, अली इब्ने अबी तालिब 4 दिन का अली है, अजहे ने मुंह आगे किया सूंघने के लिए। ये भी बेअदबी थी ना, अजहे को किसने इजाजत दी कि अली का टेस्ट करे, अली का टेस्ट करे? अजहे को किसने इजाजत दी कि भला अगोशे फातिमा से अगोशे अबू तालिब और अगोशे अबू तालिब से अगोशे रिसालत की तरफ सफर करने वाला कभी माज़अल्लाह नाजायज हो ही नहीं सकता। ये तो अगोशे फातिमा बिन्ते असद से अगोशे रिसालत की तरफ सफर करने वाला है। हजरत अरब देख रहे हैं कि वो अजहा आगे आया कि सूंघूं देखूं बच्चा कैसा है। अजहे ने मुंह आगे किया। तरीके अरब में लिखा है कि 4 दिन का अली है, एक हाथ आगे बढ़ाया, अजहे के नीचे जबड़े में डाला और एक हाथ अजहे के जबड़े में डाला और 4 दिन के अली ने अजहे को चीर कर रख दिया, चीर के रख दिया, चीर के रख दिया, अजहे को चीर के रख दिया। दोस्तों ने मुहतरम क्या होता है, अहले अरब परेशान हो गए, अहले अरब परेशान हुए। जब अहले अरब परेशान हुए ना तो अली 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 अपनी 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 जुबान से कायनात को बता रहे हैं कि दुनिया वालों, जब तक अली कायनात में नहीं आया था तो म्यारे हलाली और हरामी और थे, हलाली और हरामी होने के पैमाने और थे, लैबोरेटरियां और थी, डीएनए टेस्ट करने का अंदाज और था। अब अली इब्ने अबी
तालिब आ गया है। डीएनए टेस्ट करने का तरीका मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब। क्या बात है सवाल। अच्छा कितना मैं छोटी सी और अर्ज करूँ, बड़ी खूबसूरत अल्लाह, शायद किसी को अच्छी ना भी लगे तो फिर मैंने अर्ज करनी है। ना ना अल्हम्दुलिल्लाह, सूफी साहब जानते हैं कि पेट्रोल भी अपना है, गाड़ी भी अपनी है, मुकाबले मौलवी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, रेंट के मौलवी नहीं है अल्लाह। यहाँ पर किबला सैयद के बाल हैं और बात किबला अपने बाबे की करनी है, पैसे लेके बाबे की बात करने वाला हरामी होता है। 40,000 50,000 थूकते नहीं, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका उनकी गली में तो किबला मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, एक लेबॉर्ट्री 1810 में बनी, उसकी मुद्दत 1850 में ख़त्म हो गई। जो साइंस के तालिब इल्म बैठे हैं, बायो पढ़ने वाला शायद कोई बैठा हो, केमिस्ट्री पढ़ने वाला बैठा हो, दो तालिब इल्म ये जानते हैं कि कोई भी साइंस का जो फार्मूला होता है वो चेंज होता रहता है। कोई भी है मुख्तलिफ तिब्बरा इब्ने फीसा पढ़ते हैं, फीसा इब्ने गोरस पढ़ लें, ये फीसा गोरस का मुताला करके देखते हैं, जो साइंटिस्ट जितने भी गुजरे हैं, जो भी कवानीन आते हैं, जितने मसनूई कवानीन होते हैं 10 साल 20 साल 50 साल बाद बदलते जाते हैं, थ्योरी बदलती रहती है। ऐसे ही एक लेबॉर्ट्री बनी 1810 में, 1850 में ख़त्म हो गई, दूसरी 1850 में बनी, 1900 में ख़त्म हो गई, 1920 में बनी, 30 में ख़त्म हो गई, 30 में बनी, 40 में ख़त्म हो गई, 40 में भी 50 में ख़त्म हो गई, 50 में बनी, सन 2000 में ख़त्म हो गई, 2000 में बनी, 10 में ख़त्म हो गई। लेकिन ये लेबॉर्ट्री अली इब्ने अबी तालिब की ऐसी लेबॉर्ट्री है कि तब से बनी है, क़यामत तक रहनी है, क़यामत तक रहनी है, क़यामत तक रहनी है, लेबॉर्ट्री नहीं बदलनी। बंदे आते जाएंगे। सहाबा किराम सईद इब्ने खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नुज़ुल मुजालिस में भी है, और इब्ने कय्यम ने इब्ने कवी बड़ा मुतशद्दिद बंदा है, उसने भी लिखा है, और ज़रक़ानी में भी रवायत है। हज़रत सईद इब्ने खुदरी फरमाते हैं कि हम अपने बच्चों का इम्तिहान अली इब्ने अबी तालिब की मोहब्बत से लेते हैं, मोहब्बत से। केलावी साहब आप फरमाते हैं कि हम जिस बच्चे पे शक होता हम दरवाजे में खड़े हो जाते और उसके सामने जिक्र अली करते, अगर तो उसका चेहरा सुनकर खिल जाता, उसको प्यार करते, चूमते, बोसा देते। आज हम उन पीरों के हाथ चूमते हैं जिनके चेहरे अली के जिक्र से खिल जाते हैं। पीर जिन्ना मर्जी तगड़ा होवे, सोना होवे, चिट्टा होवे, लाल होवे, अबू लहब जैसा भी, अबू लहब बड़ा सोना था कि बला तफसीर पढ़ते देखें, अबू लहब सुरख चिंगारी को कहते हैं। तो जिन्ना मर्जी पीर सोना होवे, अली दा जिक्र सुन के जेड़ा मरोड़े, असी चोमदे नहीं, थुकदे भी नहीं होते, थुकदे नहीं। पीर होवे, मुफ्ती होवे, किबला होवे, मुहद्दिस होवे, कोई नहीं जिसके पास अली की मोहब्बत नहीं। हम तो उसे इंसान नहीं मानते, पीर तो दरकिनार है, हम तो इंसान नहीं मानते। तो सुभान अल्लाह। अली हक, अली सादिचा, अली सादिचा, अली सादिचा, अली सादिचा, अली सादिचा। नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। अली, अली हक, अली हक, अली ये बात बताती है ना, ये बात बताती है कि अली को समझने के लिए आलम होना जरूरी नहीं। क्या बात है। अकल ना भी हो तो अली समझ में आता है, शर्त है कि नस्ब पाक हो। नस्ब देखो ना बाबा, जुबान उसकी लड़खड़ाती, जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन अली हक, अली हक। ऐसे मुफ्ती से तो ये दरवेश अच्छा है। और मैं कहता हूं कि आज के नासबी मुल्ला करोड़ों इसकी ज्योति पे कुर्बान। क्या बात है, क्या बात है।
سال پڑھنے کے بعد بھی نہ پتہ چلا علی حق وہ درویش ہے اور اس کے پتہ ہے علی حق. حق حق